باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ یسوع کے دور میں فقی فریسی یسوع سے سوالات کیا کرتے تھے، سیکھنے کے لیے نہیں، آزمانے کے لیے، پھنسانے کے لیے، ڈیگریڈ کرنے کے لیے۔ اور یسوع جو بہت زیادہ شہرت پا رہا تھا اور باپ کے کام دکھا رہا تھا، یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کام دکھائے اور باپ کے جلال کو ظاہر کرے۔ اور یہ فقی فریسی یسوع کو پھنسانے کے لیے، یسوع کو آزمانے کے لیے، یسوع کو نیچا دکھانے کے لیے اور باپ کے کاموں کو ختم کرنے کے لیے یسوع سے طرح طرح کے سوال کرتے تھے۔ چاروں اناجیل گواہ ہیں کہ کس کس طرح فریسیوں نے چاہا اور یسوع کو پھنسانا چاہا۔ صرف مقدس متی کے مطابق انجیل کو میں نے کوٹ کیا ہے، باقی 3 اناجیل کو میں نے کوٹ نہیں کیا۔ مقدس متی کے مطابق انجیل باب نمبر 12 آیت نمبر 2 سے پڑھنا شروع کرے تو یسوع کے شاگرد کھیتوں میں سے گزرتے ہوئے بالیں توڑتے ہیں۔ فقی فریسی دیکھتے ہیں اور یسوع کے شاگردوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یسوع سے سوال کرتے ہیں، تیرے شاگرد سبت والے دن دیکھ بالیں توڑتے ہیں، کیوں؟ یسوع کو نشانہ بنایا سبت کے بارے میں۔ یسوع تو نہیں جانتا سبت کو کیا ہوتا ہے؟ یسوع تجھے سبت کا پتہ نہیں ہے؟ تو استاد کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایکچولی شاگردوں کی طرف اشارہ اور اصل میں استاد کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ متی باب نمبر 15 آیت نمبر 2 سے پڑھنا شروع کریں تو یسوع کے جو شاگرد ہیں وہ بن دھوئے ہاتھوں سے روٹی کھاتے ہیں۔ تو یسوع کے شاگردوں کو دیکھتے ہیں، باتیں یسوع دیکھ تیرے شاگرد بن دھوئے ہاتھوں سے روٹی کھاتے ہیں، دیکھ تیرے شاگرد۔ تو انڈائریکٹلی وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو اپنے شاگردوں کو سکھاتا نہیں ہے، تو نے اپنے شاگردوں کو سکھایا نہیں ہے، تجھے شریعت کا پتہ نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ بن دھوئے ہاتھوں سے روٹی نہیں کھاتے۔ یہ ایکچولی یسوع کو نشانہ بناتے تھے۔ تو یہاں پر بھی یسوع کو نشانہ بنایا۔ متی باب نمبر 22 آیت نمبر 23 سے پڑھنا شروع کریں تو قیامت کا سوال کر دیا۔ قیامت میں ایک بیوی زمین پر 7 بھائیوں کی بیوی رہ چکی ہے، ایک عورت، تو آسمان میں کس کی بیوی کہلائے گی؟ یہ یسوع سے سوال کر دیا، ہمیں بتا۔ اور مقدس متی باب نمبر 22 آیت نمبر 15 سے شروع کریں تو خراج گزاری ہے، ہمیں بتا خراج دینا کس کو روا ہے؟ کیسر کو یا خدا کو یا کس کو؟ ہمیں بتا، ہم جاننا چاہتے ہیں۔ صرف یسوع کو پھنسانے کے لیے، صرف یسوع کو آزمانے کے لیے، صرف یسوع کو تنگ کرنے کے لیے اور صرف خدا کا جلال روکنے کے لیے۔ اب آج کے دور میں پاک کیتھولک کلیسیا کو بھی اسی طرح سوال کیے جاتے ہیں، آزمانے کے لیے، پھنسانے کے لیے، ڈیگریڈ کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے اور خدا کا جلال جو اس کلیسیا کے ذریعے سے خداوند خدا کی اس سرزمین پر ظاہر ہو رہا ہے اسے بند کرنے کے لیے۔ ان لوگوں نے رویہ اپنایا فریسیوں والا، رویہ ہونا چاہیے تھا یسوع والا، رویہ اپنایا فریسیوں والا، سوالات 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 سوالات۔ اور یسوع مقدس متی کے مطابق انجیل باب نمبر 15 میں فرماتے بھی ہیں کہ یہ قوم ہونٹوں سے تو میری توقیر کرتے ہیں مگر ان کے دل مجھ سے دور ہیں، اسی لیے فریسی بھی ہونٹوں ہی سے توقیر کرتے تھے، اس کا گواہ ہے کلام۔ مقدس متی کے مطابق انجیل باب نمبر 6 پڑھ کے دیکھیے، فقیوں فریسیوں کا روزہ پڑھ کے دیکھیے، فقیوں فریسیوں کی دعا پڑھ کے دیکھیے، فقیوں فریسیوں کے نذرانے، یسوع نے ان کو کیسے دیکھا اور یہ کیسے چڑھاتے تھے، پڑھ کے دیکھیے۔ مقدس متی کے مطابق انجیل باب نمبر 23 یہ لوگوں کو تو حکم کرتے ہیں، دیکھیے بھائی جی ہم آپ کو کلام میں سے بتا رہے ہیں، کلام میں سے بتا رہے ہیں، کلام میں سے بتا رہے ہیں۔ فریسی بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ تو سب کچھ 10 احکام کے بھی 613 حکم اسی لیے بنا دیے۔ تو یہ لوگ فریسیوں والا رویہ اختیار کرتے ہیں اور سوالات سوالات سوالات، سمجھنے کے لیے نہیں، سمجھوتے کے لیے نہیں، مل بیٹھنے کے لیے نہیں، بلکہ آزمانے کے لیے، ڈیگریڈ کرنے کے لیے، جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے اور اس کلیسیا کے ذریعے خدا کا جو جلال دنیا میں ظاہر ہو رہا ہے اسے بند کرنے کے لیے۔ تو رویہ اپنایا فریسیوں والا، کاش رویہ ہوتا یسوع والا۔
तो यस्सु वाला रवैया नजर नहीं आता, बल्कि फरीसियों वाला रवैया ये अपनाते हैं, यस्सु की तरह सवालात करते हैं पाक कायतनक कलीसिया को। अब चूंकि बहुत सारे लोग आज फरीसियों की तरह का एक ट्रेंड चला है, बाइबल 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 और सिर्फ बाइबल। भाई जी हम देखे कलाम में से बात करते हैं, बहन जी देखे हम कलाम में से बात करते हैं, भाई जी देखे हम कलाम में से बात करते हैं, बहन जी देखे हम कलाम में से बात करते हैं। इससे मुराद क्या होती है? इससे मुराद ये है, ये बंदा जो हमें ये कह रहा है कि बहन भाई, मेरे भाइयों बहनों, मैं कलाम की बात करता हूं, रवायतें नहीं बता रहा, कहानियां नहीं बता रहा। जो बंदा ये बातें करता है, इससे मुराद ये होती है, इससे मतलब ये होता है कि ये बंदा कलाम का बड़ा पाबंद है, ये बंदा कलाम को बड़ा मानता है, ये बंदा हमेशा कलाम के मुताबिक चलता है। इससे ये मुराद होती है, और वो लोगों पर जाहिर भी यही करता है कि बहन देखिए मैं कलाम में से बात करता हूं, बहन देखिए हमें कलाम के मुताबिक चलना चाहिए, कलाम इल्हाम है, कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करनी चाहिए, कलाम कलाम कलाम, वो ये करते ही रहते हैं। तो चूंकि वो कलाम के बड़े पाबंद हैं, कलाम के बड़े पुजारी हैं और हमेशा कलाम की बात करते हैं, इससे मुराद ये है कि कलाम उनकी जिंदगी में रचा बसा है, रचा बसा है, और वो कलाम से जुदा नहीं, बल्कि कलाम उनके अंग अंग में, उनके जिस्म के कोने कोने में, उनके जिस्म के हर एक हिस्से में कलाम नजर आ रहा है। इसीलिए तो वो कलाम को उठाकर सिर्फ कलाम की बात करते हैं। तो आइए कलाम की बात करते हैं और देखते हैं कि इन लोगों के अंदर जो कलाम को उठाकर ये सिखाते हैं कलाम कलाम कलाम, कलाम में से पेश करें, कलाम का हवाला पेश करें। इससे मुरादें यही होती है, कलाम का हवाला पेश करें, मैं कलाम को सुनने वाला हूं, मैं कलाम पर अमल करने वाला हूं, कोई और बात नहीं सुनूंगा, कोई और बात नहीं सुनूंगा, बल्कि सिर्फ कलाम की आयत बयान की जाए, कलाम का हवाला बयान किया जाए। अभी देखते हैं ये लोग जो ये एक सिर्फ ट्रेंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कितने कलाम पे चलते हैं। मैंने सिर्फ कोई 4-5 हवाले निकाले हैं, ढेरों हवाले हैं, ऐसे ढेर लगा हुआ है, उनमें से सिर्फ मैंने चंद निकाले हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इतने भी काफी हैं, इतने भी काफी हैं। सुनिए, कलाम पे अमल करने वालों, कलाम कहता है, कलाम खोल खोल के दिखाने वालों, देखिए बहन देखिए भाई, मैं कलाम में से बात कर रहा हूं, कलाम में से बात कर रहा हूं। कैथलिक आपको कलाम में से नहीं सिखाते, कैथलिक कलाम नहीं खोलते, कैथलिक कलाम की बात ही नहीं करते। मैं कलाम खोल रहा हूं, मैं कलाम कर रहा हूं। इससे मुराद यही है कि मैं कलाम का बड़ा पाबंद हूं, मैं ही कलाम सिखाता हूं। तो ये जो कलाम सिखाते हैं, इनके लिए मेरा पहला हवाला है कलाम में से। क्या ये कलाम पे अमल करते भी हैं कि नहीं, या फकीयों फरीसियों की तरह ही है जो यीशु को सिर्फ सवाल करते थे और खुद लोगों को सिखाते थे, खुद उंगली तक भी नहीं लगाते थे, कहीं ये वो ही तो नहीं। हाँ देखिए, जरा गौर करना है, आपने पहचानना है, मैं तो नहीं कहूंगा ये वही है, लेकिन आपने इन हवालों को तोल कर समझना है कि ये वही है या कोई और है, या ठीक चल रहे हैं। मुकद्दस लूका के मुताबिक इंजील बाब नंबर 3 आयत नंबर 10 से 11 आपके सामने तिलावत करूंगा। लोगों ने उससे पूछकर कहा, फिर हम क्या करें? उसने जवाब में उनसे कहा कि जिसके पास 2 कुर्ते हों वो उसे बांट दे, जिसके पास ना हो, और जिसके पास खाने की चीजें हों वो भी ऐसा ही करे। आमीन। ये है आज की इंजील जो आपके सामने पढ़ी गई। खुदा करे इसकी बरकत हमें मिल जाए। मुकद्दस लूका के मुताबिक इंजील बाब नंबर 3 आयत नंबर 10 और 11 मैंने पढ़ी है। ये जो कलाम उठा कर कलाम दिखाते हैं, कलाम सिखाते हैं, कलाम दिखाते हैं, कलाम सिखाते हैं और सिर्फ कलाम की बात करते हैं, क्या ये इस आयत पे पूरा उतरते हैं? मैंने सिर्फ एक हवाला भी पेश किया है, क्या ये इस आयत पर पूरा उतरते हैं? और मैं इनको बताता हूं इन्होंने करना क्या है। इनके घरों में इस कलाम पे कैसे पूरा उतरना है। जिसके पास 2 कुर्ते हो, एक उसको दे जिसके पास नहीं। अब ये बाहर निकले, अपने घरों से बाहर निकले, बाजारों में जाएं, रोडों पर जाएं, इनको एक नहीं हजारों लोग मिलेंगे जिनके तन पे कपड़े भी नहीं, साफ कपड़े भी नहीं, गंदे कपड़े हैं। अपने घरों में से 6-6, 7-7, 8-8 और 25-30 अपने जो कोट है, पेंट कोट है, इनको अलहदा करें, आधे उनको दें। आपके घर में 2-2 स्त्रियां हैं, आपके घर में 2-2
ट्रंक है, पेटियां हैं, पंखे हैं। आपके घर में आपकी जो जगह है 5 मरले है, 2.5 मरले की रजिस्ट्री उनको करवा के दे जिनके पास नहीं है। कलाम के पुजारी लोगों, कलाम का मजा आ जाएगा, करो इसको पूरा। मैं देखता हूं कौन है जो कलाम को पूरा करता है। मैं देखूं, बेचिए अपनी जगह, दीजिए अपने आधे कपड़े, दीजिए अपनी आधी जगह, आधी चीजें भी दें, और खिलाइए भूखों को रोटी, अपने घर में लाकर सुलाइए, कैदियों के पास जाइए, बिना किसी लालच के करिए, कलाम को पूरा करिए। नहीं होता। दूसरा हवाला मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजील बाब नंबर 5, मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजील बाब नंबर 5 आयत नंबर 23 से 24 तिलावत करूंगा। तू अपनी नजर कुर्बान गाह के सामने, आयत नंबर 23 से पढ़ना शुरू करूंगा। बस अगर तू कुर्बान गाह के पास अपनी नजर ले जाए और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो अपनी नजर कुर्बान गाह के सामने छोड़कर चला जा। पहले जा अपने भाई से मेल कर, तब आके अपनी नजर गुजरान। कौन है जो इस पे पूरा उतरेगा? और मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजील बाब नंबर 18 आयत नंबर 21 से 22 में लिखा हुआ है, मुकद्दस पतरस ने यीशु से सवाल कर दिया, खुदावंद मैं अपने भाई को कितनी दफा माफ करूं? यीशु ने कहा 7 दफा नहीं बल्कि 70 बार तक, मतलब हमेशा। कितने हैं? आज कलाम सभी पढ़ रहे हैं, रोजा सभी रख रहे हैं, खैरात सभी कर रहे हैं, भाई खुश नहीं है, बहन खुश नहीं है, अजीज रिश्तेदार खुश नहीं है, कलीसिया खुश नहीं है, और हम कलाम की बातें कर रहे हैं। सिर्फ कलाम कलाम कलाम, मैं और कुछ नहीं मानता, सिर्फ कलाम को मानता हूं। किस कलाम को मानते हैं आप? किस कलाम को मानते हैं आप? तीसरी बात करता हूं, मुकद्दस लुक्का के मुताबिक इंजील बाब नंबर 1, मुकद्दस लुक्का के मुताबिक इंजील बाब नंबर 1 आयत नंबर 48। क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की, इसलिए देख अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। इसलिए देख अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। अब इस पर कितना वाज किया जाता है? मुकद्दस लुक्का के मुताबिक इंजील पहले 2 अबवाब साल के दौरान कितने पढ़े जाते हैं, इनके कितने हवाले दिए जाते हैं, कलाम की रोशनी में मुकद्दसा मरियम को कितना शामिल किया जाता है, मुकद्दसा मरियम की मिसालें कितनी दी जाती हैं? नहीं ना। और हम कहते हैं हम कलाम की बात करते हैं, हम कलाम पर चलते हैं, हम सिर्फ कलाम को देखते हैं, कलाम के सिवा कुछ नहीं मानते। कलाम ही में लिखा हुआ है, मां ने कहा पेशीन गोई की, अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। आप में से कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने एक बार भी अपनी मां को, मुकद्दसा मरियम को मुबारक नहीं कहा, मुकद्दसा नहीं कहा, मां नहीं कहा, उसकी कभी तारीफ ही नहीं की, कभी मुकद्दस लुक्का के मुताबिक इंजील 2 अबवाब, पहले 2 अबवाब पढ़े ही नहीं है। समझते ये तो इसका हिस्सा ही नहीं, मुकद्दसा मरियम तो आपकी दुश्मन हुई। और फिर तीसरा हवाला है मत्ती के मुताबिक इंजील बाब नंबर 15, मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजील बाब नंबर 15 और आयत नंबर 18 से 20 पढ़ूंगा। लेकिन जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही इंसान को नापाक करती हैं, नापाक करती हैं। क्योंकि बुरे इरादे मुंह से निकलते हैं, यानी खून रेजियां, जिनाकारियां, हराम कारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, कुफर गोइयां, यही बातें हैं जो इंसान को नापाक करती हैं, नापाक करती हैं। मगर बगैर धोए हाथ खाना खाना इंसान को नापाक नहीं करता। और इसी तरह मुकद्दस मरकज के मुताबिक इंजील बाब नंबर 7 आयत नंबर
20 से उसने फिर कहा, जो कुछ इस इंसान में से निकलता है वही इंसान को नापाक करता है, नापाक करता है जो अंदर से निकलता है, क्योंकि अंदर से यानी इंसान के दिल से बुरे इरादे निकलते हैं, यानी हरामकारियां, चोरियां, खून रेजियां, जिनाकारियां, लालच, बदियां, मकर, शहवत परस्ती, बदनजरी, कुफर गोई, नखवत, हमाकत, ये सब अंदरूनी बुराइयां निकल कर इंसान को नापाक करती हैं, नापाक करती हैं, नापाक करती हैं। और जो नापाक हो जाता है इन बुराइयों की वजह से, जो हमारे ही सीने से, हमारे ही दिल से निकलती हैं, उनके बारे में मुकद्दस पौलुस रसूल इफिसियों के नाम जो खत है बाब नंबर 5 आयत नंबर 5 में फरमाते हैं, क्योंकि खूब समझ लो, क्योंकि खूब समझ लो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्त के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में मिरास नहीं। कलाम का प्रचार करने वालों जो ये कहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पाक कैथोलिक कलीसिया को निशाना बनाते हुए पाक कैथोलिक कलीसिया के लोगों को नीचा दिखाने के लिए पाक कैथोलिक कलीसिया से सवालात करते हैं और इनके सामने ये कहते हैं, हमें बाइबल में से बताएं, हमें बाइबल में से बताएं, हमें बाइबल में से बताएं। मतलब मैं सिर्फ बाइबल की मानता हूं, मतलब मैं सिर्फ बाइबल की बात करता हूं, मतलब मैं बाइबल पे अमल करने वाला हूं। अगर बाइबल में लिखा है मैं मान जाता हूं, नहीं लिखा मैं नहीं मानता, वजह मैं बाइबल पे चलने वाला हूं। सुनिए मेरे भाई, सुनिए, कलाम की बात करने वाले इफिसियों के नाम खत को पढ़ा, मत्ती और मरकस कह रहे हैं कि नापाकी हमारे अंदर से निकलती और हमारे सारे बदन को नापाक कर देती है। और रसूल ने यह कह दिया कि जो नापाक है खुदा की बादशाही में जा नहीं सकता, दाखिल नहीं हो सकता। और फिर आखिरी हवाला ये पेश करता हूं, कहां पे हम पता नहीं कहां पे चल रहे हैं और कलाम को उठा के कलाम की बातें करते हैं। चलिए, ये आखिरी हवाला है मुकद्दस यूहन्ना का पहला खत बाब नंबर 3 है। सुनिए, आयत नंबर 8 से पढ़ना शुरू करूंगा। जो कोई गुनाह करता है वो शैतान का है, क्योंकि शैतान शुरू ही से गुनाह करता आया है। खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि शैतान के कामों को नेस्त करे। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। हमारे अंदर से ये जो सारी बुराइयां जो मुकद्दस मत्ती और मुकद्दस मरकस जाहिर करते हैं, ये अंदर से निकलती हैं। गुनाह इंसान को नापाक करता है, गुनाह शैतान इंसान को नापाक करता है, गुनाह इंसान को नापाक करता है। लालच शैतान से आता है, झूठ शैतान से आता है। ये दूसरों के बारे में बुरा सोचना, बुरी ख्वाहिशात, ये सब कुछ शैतान से आता है, शैतान से आता है। और यहां पे लिखा हुआ है, जो कि खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, इसलिए कि उसका बीज उसमें रहता है और वो गुनाह नहीं कर सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। ये मेरा आखिरी हवाला था। वैसे आखिरी नहीं है, ढेरों हवाले हैं अभी ये बात को क्लियर करने के लिए, लेकिन इतने में हो गया कि हम आज इस ट्रेंड को मेरा ख्याल है थोड़ा कम करें या छोड़ें तो अच्छा है कि मैं जी कलाम की बात करने वाला हूं, मैं सिर्फ कलाम की बात सुनता हूं, मैं सिर्फ कलाम के हवालों के मुताबिक बात करने वाला हूं। इस ट्रेंड को बंद कीजिए, आप जरूर कलाम के मुताबिक बातें कीजिए, आप जरूर कलाम के हवाले दीजिए, मगर पाक कैथोलिक कलीसिया को निशाना ना बनाएं, क्योंकि आप जिस तरह फकी फरीसी यीशु को निशाना बनाते थे, उसी तरह आप पाक कैथोलिक कलीसिया को निशाना बनाते हैं। और आप सीखते नहीं, सीखने के लिए सवाल नहीं करते, बल्कि आजमाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, मुकाबला करने के लिए और इस कलीसिया के वसीला से जमीन पर खुदा का जो जलाल जाहिर हो रहा है उसको बंद करने के लिए ये नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। ये नाकाम कोशिशें हैं, ये कभी पूरी नहीं होगी। इनको बंद कर दीजिए, क्योंकि
पाक कैथोलिक कलीसिया थी, है और रहेगी। पाक कैथोलिक कलीसिया की तादाद सबसे ज्यादा थी, है और ज्यादा ही रहेगी। खुदावंद इस कलीसिया के साथ हो, इस कलीसिया की बुनियाद रखने वाला इस कलीसिया के दरमियान है, वो इसको रेजा रेजा नहीं होने देगा। खुदावंद हम सबको बरकत दे, और जो कलाम को उठाकर जो कलाम को पूरा करने वाले हैं, खुदा करे कि ये वाकई कलाम को पूरा करने वाले बने। खुदा करे हमें ये मुकद्दस बनते हुए नजर आए। खुदा करे ऐसी मुकद्दसीन की जिंदगियां इनकी बन जाएं जो वाकई मुकद्दस हों, होंठों से कहने वाले नहीं कि मैं खुदा का बंदा हूं, बल्कि वाकई उसके बंदे बन जाएं। हमें ज्यादा खुशी होगी। खुदा आप सबको बरकत दे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन।